Guys, where I was, we were launching an EC2 AWS instance. EC2 AWS instance launch. So remember one thing I told you yesterday. Security group, what is that? Security group hota hi hai. Try to understand this concept. What is security group? Yes, which website you use most? आप कौन सी website use करते हैं सबसे पहले? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? हाँ ठीक। मेरी आवाज आ रही है किसी को? Yes, sir. I'm asking, which websites do people use most? आप कौन सी website सबसे ज़्यादा use करते हैं? Chrome. भैया कौन सी यूज करते हो भाई? Facebook, Twitter. And Raju, what about you? Which website you use mostly? Same thing, bro. Facebook, Google. Google, Facebook, that is okay. Sneha, what about you? Google only. Flipkart, Google Amazon. only. Flipkart, Amazon, shopping websites. So the concern is that, like whatever website you are using, let's suppose you are using Flipkart for online shopping, Amazon for shopping again, you are using Instagram, using Facebook. Facebook, What? Oh, Twitter. Just guys, remember what I am and why I am asking this. मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे? Try to understand this concept about the security group. This gives you a very better clarity. What is security group is all. ये आपको बहुत clarity दे देगा कि security group होता है. Guys, these are the web pages. These are web pages. And simply you type www.facebook.com, Instagram.com, Twitter.com. So remember one thing. मैंने आपको क्या बोला? वेब पेजेस and web pages are running under web services. Web pages web services के अंदर काम in computer world. Everything is service. कंप्यूटर वर्ल्ड में हर चीज एक सर्विस है. कैसे? आपने यूज किया facebook.com, you are using facebook.com. This is known as a DNS service, domain naming service. आपने यूज किया facebook.com. Again a DNS, but you are accessing web page. Mean you are accessing web service. You are using Gmail. You are using mail service. You are sending mail. You are using pop service. You are receiving mail. You are using IMAP service. You are connecting to server. आप सर्वर से कनेक्ट हो रहे हो. You are using SSH or RDP service.
What I mean to say, everything in computer, whatever you are doing on internet is known as a service. आप कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू जो भी काम करते हैं is known as a service. And each service has name. Each service has address. These addresses known as port number. हर सर्विस का अपना एक नाम होता है. लेट्स से मैंने आपको यहाँ बताया डीएनएस सर्विस, वेब सर्विस, मेल सर्विस. इन सब सर्विसेज का अपना एक नाम है. हर सर्विस का अपना एक पोर्ट नंबर है. एवरी सर्विस हैज अ नेम एंड एवरी सर्विस हैज अ पोर्ट नंबर. मेरे पास मेरे दोस्त बैठे हैं राहुल, ये इनका नाम है. एक और भाई एडमिशन लेता, उसका नाम भी है राहुल. अब एक क्लास में 2 राहुल हो गए, तो मैं इनको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? मान लो इनका सरनेम भी दोनों का एक ही है, कश्यप. ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना. क्या आप स्कूल में देखा होगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि स्कूल में 2 बच्चे होते हैं, दोनों का कॉमन नेम होता है. So how do you identify both of them? With their roll number. Two boys has the same name. How do you differentiate between both of them? By their roll number. The same thing is here. Every service has a port number. हर सर्विस का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है. That is known as a port number. हर सर्विस का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जो पोर्ट नंबर कहलाता है. Every service has a specific address. हर सर्विस का अपना एक एड्रेस है. In total, before that, these services known as TCP. ये सर्विसेज TCP और UDP कहलाती है. In total, we have 65,534 सर्विसेज. टोटल इंटरनेट की दुनिया में 65,534 सर्विसेज मौजूद हैं जिन्हें आप यूज करते हैं अपने फंक्शनैलिटी के लिए. इन टोटल वी हैव 65,534 सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. दो सर्विसेज वी विल यूज. ये सर्विसेज हम यूज करते हैं अपने डे बाय डे ऑपरेशंस में. मैं आपके साथ जूम पे कनेक्ट हूँ, हम लोग कोई सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं. वी आर कनेक्टेड वाया जूम, सो मीन्स वी आर यूजिंग एनी XYZ सर्विस. कोई ना कोई एक सर्विस हम इस्तेमाल कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिक्योरिटी ग्रुप इज लाइक अ मॉनिटर ऑफ माय EC2 that make sure which service I want to access on EC2. सिक्योरिटी ग्रुप एक तरीके का चौकीदार होता है जो ये मेक श्योर करता है कि आपके सर्वर के ऊपर कौन सी सर्विस ओपन रहेगी, कौन सी सर्विस ओपन नहीं रहेगी. अगर आप चाहो तो आपके सर्वर के ऊपर कोई भी सर्विस ओपन नहीं होगी, और अगर आप चाहो तो आपके सर्वर के ऊपर सारी सर्विसेज ओपन रहेंगी. सिक्योरिटी ग्रुप एक चौकीदार की तरह काम करता है जो ये मेक श्योर करता है कि कौन सा ट्रैफिक, कौन सी सर्विस आपके सिस्टम से एक्सेस होगी, कौन सी सर्विस आपके सिस्टम से एक्सेस नहीं होगी. एक बहुत अच्छा रेफरेंस मैं आपको देता हूं कि आपके पास सेल फोन है, आपके सेल फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट है, आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट लिस्ट है. कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम ऐड होने का मतलब ये होता है कि आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपका नंबर किसी नोन के पास है तो वो आपको मैसेज कर सकता है. तो जो आपको मैसेज कर रहा है वो आपके फोन में मैसेज डिस्प्ले होगा. वो चीज कहलाएगी इनकमिंग. आप अपने सिस्टम से, अपने फोन से कोई भी मैसेज आप ड्रॉप करेंगे, वो चीज कहलाएगा
आउटगोइंग। आप कॉल रिसीव कर रहे हैं, जो आपके पास आ रहा है दैट इज इनकमिंग। आप कॉल कर रहे हैं दैट इज आउटगोइंग। ये सबको पता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। राजू, security group is just like a monitor of your EC2 instance. Suppose you have a cell phone in your hand and you are receiving a call. That means someone is calling you and you are receiving a call. This is known as an incoming traffic. You are making a call to someone. That is known as an outbound. Means all the port, all the services that has been accessible by your machine is known as an incoming, and your system is accessing some other service that is known as a outgoing. तो मैं चाहता हूं मेरी मशीन पे, मेरा टास्क क्या है, वेब सर्वर ओपन करना। What my task is all about web services, to create a web server. So I Amran was sir. here for, yes sir, सर बताओ सर। इसको सॉरी इसको ऐसे भी तो मतलब ये चीज जो मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ, मतलब पूछने वाला हूँ, वो भी इसी का ही है क्या? लाइक कि जैसे हम नेटफ्लिक्स वगैरह चलाते हैं या अमेज़न चलाते हैं, उस सर्वर पे स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह वाली सर जो है, मतलब किसी तरीके की रिकॉर्डिंग बंद करी हुई है उन्होंने, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ये भी सिक्योरिटी का ही पार्ट है ना? वो सिक्योरिटी का पार्ट है, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल सिक्योरिटी का पार्ट है। तो उन्होंने भी मतलब ये सर्विस, जैसे आपने कहा कि हम सिक्योरिटी का जो ग्रुप है उसमें ये है कि हम कौन सी सर्विस हम अपने सर्वर पे यूज कर सकते हैं, कौन सी सर्विस हम नहीं यूज कर सकते। तो बिल्कुल, ये सही है यही ना एक बात है, चीज? बिल्कुल सही। जी जी, ओके। Nice, nice. So now, Aftab is saying that while we are watching movies on Amazon and Netflix, the people have disabled recording. That means you cannot record their operations. So again, this is a part of the security. They block their service. They block that service. So the same thing is here, that if I want to open a web service, where is that? If I want to open a web service, then I have to set up a rule here. मुझे वेब सर्विस स्टार्ट करनी है, मुझे यहाँ पे एक रूल लगाना है। क्लिक हियर, चूज वेब। वेब सर्विस ऑलवेज स्टार्ट्स विद HTTP. When you run any website name, HTTP www.google.com. So HTTP is the service name. Protocol TCP, as said again, ये TCP कंट्रोल करता है। पोर्ट नंबर 80, I told you every service has a port number. हर सर्विस का अपना एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि मेरी मशीन पे मैंने पोर्ट 80 को ओपन करा। What else? I have another option called all TCP. मेरे पास एक ऑप्शन और है जहाँ पे लिखा है all TCP. If I open this, that means entire services 65,535 will get open on this EC2 instance. इस EC2 इंस्टेंस पे ये 65,535 सर्विसेज सब एक झटके में चालू हो जाएगी, एक ही बार में चालू हो जाएगी। If I choose all TCP, then 65,535 services will open on this EC2 instance. I can use any service. But this is not a good practice. In companies, we always prefer to open only limited service. हम कंपनी में सिर्फ लिमिटेड सर्विसेज को ओपन करते हैं। तो आई एम चूजिंग HTTP here. मैं यहाँ HTTP चूज कर रहा हूँ। Review, launch. Yesterday I told you that you have to create a security key pair. It's like a password. So for people who have joined me today, just see कि आपके पास जब आप इसको स्टार्ट करोगे, ये स्क्रीन आपको ब्लैंक नजर आएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू की पेयर। So you will get this option. Give the key pair name. I say web service and say download key pair. Don't forget to download. इसे डाउनलोड करना मत भूलना, वरना कभी भी इंस्टेंस पे लॉगिन नहीं कर पाओगे। आप कभी अपने इंस्टेंस पे लॉगिन नहीं कर पाओगे अगर ये की आपकी खो जाती है तो। If you forgot this key, if you lose this key, you will not be able to log in on that instance. Say launch instance. अब ये मेरा EC2 चालू हो गया, मेरी मशीन बन गई। Click on view instance.
यहाँ पे मैंने क्या कमांड बनाई, वेब सर्वर, ये मेरा सर्वर, आई एम रनिंग विद वेब सर्विस एंड आई हैव अ की कॉल्ड वेब सर्वर डॉट पैम। मेरे पास एक की है जिसका नाम है वेब सर्विस डॉट पैम। Guys, on your local desktop or laptop, you have to download this Git bash. आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा, Git bash, सिंपल लाइक डाउनलोड Git bash। तो ये आप फॉर विंडोज, तो आप ये लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टू कनेक्ट टू द सर्वर। नाउ यू सी आई हैव डाउनलोडेड दिस की हियर, तो ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में गई है। इट हैज गॉन इन माय डाउनलोड फोल्डर। This is the key that I have just downloaded। ये वो की है जो मैंने डाउनलोड करी है। यहाँ पे एक कमांड चलाइए, रन वन कमांड हियर। And then go to the EC2 instance and check the status. Still this is initializing. Status check means it is checking the status whether your machine is okay to run or not। आपकी मशीन रन करने लायक है या नहीं है, चलने लायक है या नहीं। It will take hardly 1 minute or 1.5 minutes, 1 minute or 1.5 minutes। उससे पहले in the meantime let's have a look to the option here। If you click here in the detail section, it is saying you instance ID। ये आपको इंस्टेंस आईडी बता रहा है। दो आईपी एड्रेस है, पब्लिक एंड प्राइवेट। जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे उसमें समझेंगे ये होता क्या है। देन ऑटो असाइन पब्लिक आईपी नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी में आप आइए, सिक्योरिटी ग्रुप, आपने दो पोर्ट ओपन करें 22 एंड 80, वो आपको यहाँ दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे तो मेरे सिस्टम में सिर्फ ये दो पोर्ट ओपन है। इन माय सिस्टम आई हैव दीस टू पोर्ट्स ओपन rather than everything is blocked। Once it is said 2x2 check pass means all the hardware is been passed, this machine is ready to use। सारे हार्डवेयर चेक क्लियर हो गए, ये मशीन रेडी टू यूज है, आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन कनेक्ट बटन, क्लिक करिए कनेक्ट बटन के ऊपर, कॉपी ऑन एग्जांपल एंड पेस्ट द एग्जांपल हियर। ये मेरी मशीन है जो मैंने अभी बनाई। नाउ व्हाट माय टास्क इज ऑल अबाउट, टू क्रिएट अ वेब पेज। मेरा टास्क क्या था, मुझे एक वेब पेज क्रिएट, एक वेब सर्वर बना। So to create a web server, I need to install packages। वेब सर्वर बनाने के लिए मुझे पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। लाइनेक्स का पार्ट है जो मैं पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा हूँ। दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइनेक्स, व्हाटएवर द पैकेज आई एम इंस्टॉलिंग। फोकस मत करो, सिर्फ ये कमांड पे फोकस करना जो मैं सिखा रहा हूँ। डोंट फोकस हियर, ओनली फोकस हियर ऑन द कमांड। दिस इज द वे टू EC2 टू क्रिएट एन EC2। एक EC2 बनाने का तरीका है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Second, I get a request for tomorrow's class that take it at 10 AM। कल 10 बजे, तो मैं खुद ही सो के नहीं उठ पाऊंगा। Let's keep it at 11 बजे रखते हैं। बाकी आप लोग बताइए, आर यू कंफर्टेबल गाइस एट 11 o'clock टुमारो, 11 बजे अगर मैं क्लास रखूं, सो विल यू गाइस अवेलेबल? Yes, sir. सुबह 11 बजे कल, तो पूरा दिन एंजॉय करते हैं। Tomorrow we have a class at 11 AM, so I'll pick you। Sure, no problem.
Hang on, I have a call. Just give me a second. I have a call. Give me a second. I have a call. Sorry guys. So I was telling you how to create a web page. This is Ubuntu. So here we work on Apache. So Ubuntu is Apache काम करता है. So you have to run one command. Which is that. अपने पब्लिक आईपी को कॉपी करिए. थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा. जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए. It becomes very difficult for the people who is new. But trust me guys, if you repeat only these commands, you will be able to run your web page. Here it is. Let's make it more interesting. इसको थोड़ा और interesting बनाएं. Any content जो भी आप लिखना चाहते हैं. आईपी एड्रेस लीजिए. आप सभी अपने ब्राउजर में इसको एक बार सेट करके देखिए. यू ऑल गेट द सेम. इसी तरीके से हम लोग वेबसाइट्स को बनाते हैं. हम दिस इज द वे ओनली वी विल क्रिएट वेबसाइट्स. Like a coder will code something and you have to put those code inside the directory. आपका coder coding करता है और आपको वो code आपकी directory में डालना पड़ता है. You will get this. How many of you have tried this? किसी ने ये ब्राउजर में आईपी डाल के चेक करा? How many of you have put the this IP in the browser? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही. कौन बोल रहा है? Your voice is not coming. Yours is. I'm not getting any voice. Yes, sir, it's working. Yeah, What it's about the? working. Even I checked. This is the way. Yeah, bro, Sneha, I checked. what happened? Working. Yes, it is working. So this is the way that you people will create a web page. And if you are working for the company, that this IP address will be mapped to any of the company's domain name. Domain name like xyz.com, abc.com. So these things we will learn moving further in AWS. But this is a very simple thing to create a AWS. Easy to instance. If you have any question, you could ask me. And let's meet tomorrow at 11 a.m. with new chapter, new topic. Till the time, if you get time, do the practice. अगर आपको टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस करिए. Guys, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करोगे. So it's up to you that how you would do the practice. हाँ जी, बोलिए. Hi, sir. I have some questions. Like, once we are done with this, can we just talk one on one? I'm done, sir. You have my number. You can call me at 11 o'clock. I'm going for Okay. dinner after the session. Then we can have a word over the phone at 11 if you don't know. Okay, so your number ends with 2067, right? Absolutely. All right. I'll call you at But 11. I think you are the from new group. That's Yeah, the we are best the group. yes. We are the new guys. So we have some questions. So
by that time I'll ask all the questions like whatever we guys have. So yeah, I'll call you at 11. Sure, sir. I'll wait for you. Okay, good. Sir, Anyone मेरा have एक any क्वेश्चन था. Sir, go ahead, sir. पूछो. एक्चुअली सर आफ्टर कंप्लीट जॉब या कोर्स मतलब रोल एंड अपना डेजिग्नेशन क्या रहेगा सर? सर देखिए, मेरे साथ यहाँ पे दो मेरे फ्रेंड है, राजू और आकाश. The guys are working as a senior DevOps engineer. Reason behind that, they had practiced hard. तो रोल इंडस्ट्री में मैटर करता है, but if you work hard, you will get senior DevOps engineer. You will get DevOps engineer like Raju has done, Banda Akash has done. Okay, I know these guys previously and they are doing superb in the market now. So just telling you one thing कि आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है सर रोल आप क्या बनना चाहते हो. शुरुआत डेवऑप्स इंजीनियर से होती है, ठीक है. आप डेवऑप्स इंजीनियर के बाद कंसल्टेंट, सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, एसआरई, आर्किटेक्ट, सीनियर आर्किटेक्ट और सीनियर कंसल्टेंट पे जाके खत्म होती है. फिर उसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं. बट इन द मेन टाइम रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना. कंपनी अगर आपको रोल दे देती है सीनियर डेवऑप्स लीड का और आपसे काम नहीं करवाती तो आपकी पोजीशन बेकार है, क्योंकि वहां पे आपको सीखने को नहीं मिलता. जो डेजिग्नेशन की आपने बात करी, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद यू विल बिकम एसआरई, यू विल बिकम क्लाउड इंजीनियर, यू विल बिकम डेवऑप्स इंजीनियर, यू विल बिकम, अगर आपने ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म किया, सीनियर डेवऑप्स का. डिपेंड करता है सर आपकी मेहनत के ऊपर, आप कितना चीजों को एक्सप्लोर करते हैं उसके ऊपर. सारी चीज आपके ऊपर है सर. अगर 3 महीने मैंने बोला भी था आपको और स्नेहा को और बाकी सब लोगों को भी मैं बोलता हूँ, ये 3 महीने सब कुछ भूल के अगर आप पढ़ाई कर लोगे, आपकी जिंदगी के आगे के 30 साल सुधर जाएंगे. वर्क हार्ड फॉर 3 months, definitely the next 30 years of your life will become easy for you. बट मजा तभी आएगा जब आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट दिखाओगे. तो मैं भी नई नई चीजें बताऊंगा. अदरवाइज बुक की 5 चीजें हैं वो सीख लोगे, फील्ड में फाइट करनी पड़ेगी. थोड़ा हटके पढ़ोगे ना तो नौकरी भी आसानी से मिलेगी और अच्छी नौकरी. तो जो मैं बता रहा हूँ फॉलो दीज थिंग्स, बट मेन मेरा मैटर यही है, टू द प्रैक्टिस. जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए. विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता. और पूछिए सर. सर सैलरी कोई की बात करते स्पेसिफिक तो सर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का रिक्वायर्ड नहीं है ना? सर मैं अपना लाइव एग्जांपल देता हूँ. मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी मैंने सर. हिस्ट्री पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी. बस ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा. 15 इयर्स की रेगुलर एजुकेशन होनी चाहिए, कम से कम 15 साल की रेगुलर एजुकेशन होनी चाहिए. स्ट्रीम मैटर नहीं करती कि किस स्ट्रीम से हो आप. आईटी में सिर्फ टैलेंट बोलता है. आप काम करिए, जितना आप ज्यादा काम करेंगे, जितना आप ज्यादा सीखेंगे, उतना ही आप जल्दी आगे बढ़ेंगे. ओके. आप तो वैसे ही पीछे कर रखा आपने, यस. तो उस पॉइंट से आप आजाद. और बताओ. थैंक यू सर. दोस्त बस प्रैक्टिस करो जितना हो सके. डू एज मच एज यू कैन, एक्सप्लोर द थिंग्स. Then you will see after 1 month and after 2 months and after 3 months. I have Pawan with me. Let me tell you, Pawan is also working in IHS market now. This is the biggest giant company in IT industry. So Pawan is also working in IHS market now. He is working as a QA, but he wants to move himself to DevOps because his company has a very large audience in terms of DevOps. उसकी कंपनी के अंदर DevOps की बहुत बड़ी टीम है, and he saw that how DevOps people will work. So it's up to you how you work hard. आप कैसे work hard करते हैं, that is up to you. Any more question? नो सर.
Thank you, sir. Okay, guys, then see you tomorrow at 11 o'clock. And please share the recording. So I'll share this recording to everyone. Okay, sir. You guys.